actress, celebrated writer, and a visionary entrepreneur. We have a true powerhouse of talent and creativity. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Sargun Mehta here, the fabulous actor. Give her a big round of applause. Thank you. With her, we have a most handsome Mr. Ravi Dubey. It's an honor for us that we welcome to the multifaceted personality who has carved a niche for himself in the Indian entertainment industry. As an actor and a successful producer, let's welcome Mr. Ravi Dubey, ladies and gentlemen. कैसे हैं आप लोग? Thank you for coming on such a hot afternoon. God bless you all. And बड़ा दिन है हमारे लिए. कई वजहों की वजह से बड़ा दिन है. 6 तारीख को हमारे 2 शोज़ ड्रीम यात्रा ड्रामा के पहले तो आप लोगों के माध्यम से पूरी मैं जनता को, देश की जनता को, दुनिया की जनता को बता दूं कि बहुत प्यार और बहुत जो है सफलता अपने ड्रीम यात्रा ड्रामा को मात्र 5-6 महीने के भीतर दिए. 5-6 महीने भी नहीं हुए जी, 5 ही महीने हुए. दिसंबर टू मे. Just 5 months and close to 4 billion minutes watched. That's an incredible feat for us. मैं और सरगुन जो है we are very encouraged. और जो next lineup of shows है उसमें जो 2 shows हैं हम आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे. और other than that मेरे और सरगुन के जीवन में एक बहुत बड़ा जो पड़ाव है जो अभी आया है कुछ एक दिन पहले. फ्राइडे को सरगुन की फिल्म सौंकन सौंकने 2 वो रिलीज़ हुई है और हमारी प्रोडक्शन है, ड्रीम यात्रा की प्रोडक्शन है वो. सरगुन मेहता इज़ द स्टार प्रोड्यूसर. पिक्चर देखेंगे आपको 2 सरगुन दिखाई देगी. पिक्चर के पीछे जो मैंने देखा है 11-12 सरगुन थी जो हर डिपार्टमेंट हैंडल कर रही थी. और द फिल्म हैज़, आई एम हैप्पी टू टेल यू ऑल, इट हैज़ हिट इट आउट ऑफ द पार्क. 2025 की बिगेस्ट ओपनर है. और जो पहला वीकेंड है इट्स अ ह्यूज वीकेंड. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रेयर्स जो आप लोग पूरी शिद्दत से सरगुन की तरफ और मेरे लिए आप करते हैं. Now, without further ado, I'll actually let the lady speak. I'm so sorry, I just hogged the mic. नहीं बस फर्स्टली थैंक यू. दिसंबर में हम अपने पहले 2 शो रफू और लवली लोला लाए थे और तब हमने बहुत हौसले के साथ 3 और शो अनाउंस तो कर दिए थे पर हमें अंदर ही अंदर डर था. हमने कहा अगर ये ना चले तो बाकी कैसे बनेंगे. बट सब लोगों ने इतना प्यार दिया, ना सिर्फ इंडिया से, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, हर जगह से हमें भर के ऑडियंस ने देखा. सो पहले तो थैंक यू सो मच हमारे उन दोनों शोज़ को इतना प्यार देने के लिए. और अब हमारे अगले 2 शोज़ जिनमें से पहला शो है वी कैन कॉल देम तू आशिकी है. नाम इतनी दफ़ा चेंज कर दिया हमने, हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं. तू आशिकी है. सो लेट मी जी सॉरी बिफोर जैसे कि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअली दैट्स नॉट 4 million minutes, दैट्स 25+ billion minutes which has been watched by the users. A big round of applause for Dreamy Yata for that. ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है. मुझे नहीं पता. हम बैकएंड नहीं देख रहे. So yes, moving ahead, we'll invite the team of Tu Ashiki here. Starting here, I would like to call up. There are 2 shows which has been lined up, and the first is a romantic show, Tu Ashiki Hai, presenting heartthrob Abhishek Kumar, beautiful Amandeep Sidhu, fabulous Shazan Khan. Please give them a big round of applause, ladies and gentlemen. And a very senior and respected actor. He's like an elder brother to me. He's playing a very pivotal role in the show. Rajendra Chawla ji. तो सबको मैं Please come on the stage. Ladies and gentlemen, make some noise for the amazing actors and actresses we will be having here of the entire team of Tu Ashiki Hai. Give them a big round of applause. Yay! अभिषेक का पूछना है कि क्या हमें दोबारा मिलना है. मिल ले. हाँ प्लीज. So ladies and gentlemen, give them a big round of applause for the entire starring actors and actresses of Tu Ashiki Hai. Ladies and gentlemen, a huge congratulations for the launch. Thank you so much. Thank you so much. And moving ahead, I would request you to please say a few words. How was the experience about acting in it, and how is the film all about? में काम किया था of course. And Badal mein what I was playing and in this what I'm playing is totally different, and I'm grateful
थैंक यू सो मच कि मैंने ये शो किया, आपने मुझे लिया, एंड इट वाज लवली वर्किंग विद यू अभिषेक एंड विद यू एज वेल. थैंक यू. Thank you so much. And moving ahead for Mr. Amandeep, how was your experience in this? Shehzan. That's Mr. Amandeep. That Mr. Ramandeep, I'm Miss Shizan Khan. I'm All Miss right, Shizan. Shehzan. How was your experience for working in this film? मैंने फर्स्ट टाइम इन माय करियर ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले किया जिससे मैं कभी रेजोनेट ही नहीं कर पाया, मैं खुद कभी उससे मेल नहीं खा पाया. एंड ओनली रीज़न आई कुड डू दिस बिकॉज ऑफ हिम. मैं जब अटका हूँ, मैंने लिटरली कॉल किया डरते डरते. मैं क्या पता नहीं फ़ोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे. सुबह सुबह यू वुड ऑलवेज पिक अप माई कॉल, ऑलवेज. हम फ़ोन पे ये यूज लाइनें कराते थे मेरी, सेट पे भी जाता था तो फ़ोन पे वो सब हो रहा है. और मेरी डे वन जब शूटिंग जब भी आएगा वो द ट्रेलर जो मैंने भी नहीं देखा अभी तक बाय द वे. और उस दिन ये पूरा दिन वहाँ पे थे तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनके बिना ये शो कर पाता, क्योंकि एक पॉइंट पे मुझे खुद पे भी नहीं था पूरा ट्रस्ट कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. बट ही रियली शो ट्रस्ट मी. और मैंने पूछा भी था क्यों, व्हाई आर यू पिकिंग मी फॉर दिस. मैंने पूछा भी था आपसे ये, व्हाई डिड यू. That's a tough question. Don't make me reconsider it. अब क्या, अब तो हो गया. तो अब Actually, तो हो वो गया. कहते हैं ना, हीरो की परख सिर्फ जौहरी को होती है. So he is. बट नहीं, अर्जन को देख के यार क्या है ये. They want you to be in the center of stage. अर्जन को देख के आई स्वेयर सब लोग डरने वाले हैं. मुझे भी इनको मारते हुए बहुत डर लग रहा था कि अभी ना मेरे को पीट दें. मतलब अलग कैरेक्टर प्ले किया भाई ने. आई थिंक हमारे सीन्स जितने भी हुए हैं साथ में बहुत मजा आया हमें करके. लिखे ऐसे होते थे, मैं पढ़ता था नाम लाइक यार ये पम्मा कमाल है यार. और ऑफ स्क्रीन जैसा है ऑन स्क्रीन बिल्कुल भी वैसा नहीं है. ऑन स्क्रीन हम दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते. ऑफ स्क्रीन बहुत बातें करते हैं. दुश्मन है दोनों ऑन स्क्रीन एंड भाईचारा है. फुल भाईचारा ऑन टॉप एज दे होना भी से. चाहिए. राजेंद्र भैया नहीं नहीं वाह चावला वाह. वाह चावला वाह. बट राजेंद्र भैया, मैं बिफोर ही स्पीक्स आई जस्ट टेक द लिबर्टी ऑफ इंटरजेक्टिंग. एंड राजेंद्र भैया और हम बहुत करीबी हैं और बहुत पुराने जो है दोस्त भी मैं नहीं कहूँगा, मेरे बड़े भाई हैं. और सास बिना ससुराल अगर आप लोगों ने देखा है, बहुत पहले सीरियल आया करता था, तो उसमें मेरे बड़े भाई थे, आज भी बड़े भाई हैं. आई लेट हिम स्पीक नाउ. मेरे लिए घर की बात थी. शायद 15 साल हम साथ में, उसके बाद 2010 से लेके 2012 तक हमने साथ में काम किया. उसके बाद काम नहीं किया, लेकिन वो प्यार, वो मिलना, वो वैसा ही रहा. और आज जब पहली बार इनके साथ इतने बड़े अंतराल के बाद काम करने का मौका मिला, तो कोई डिफरेंस नहीं था. ये दोनों थे, श्रमन था. तो मुझे तो ऐसा रखा गया है, लिटरली ऐसा रखा गया. क्योंकि इतनी जगह थी, इनको हाँ, कमरा इतनी वमरा जगह. नहीं दिया, इसी पे रखा बस. ये किचन था, ये बाथरूम है, ये बेडरूम था, जिसमें से 2 बंद थे. हाँ, नहीं, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा. और मुझे कुछ बातों का मलाल है कि मैं अब क्या, चिंता मैं मत बोल करिए, भी मेरा नहीं पूरा भरोसा है कि वो प्रोजेक्ट से जल्दी फ्री हो जाएंगे आप. सकता. ओके. अरे अरे नहीं, पर सच में बहुत मजा आया मेरे को. वो मतलब किसी भी इतनी सी भी चीज की तकलीफ नहीं हुई है मुझे. एंड आई मीन इट. वी ऑल थैंक यू. हाँ, मैं यहीं पे बैठ के सॉरी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. सच में अब तो थोड़ा बहुत काम कर लिया, बहुत प्रोडक्शन हाउसेज में जाके इधर उधर देख लिया, बट यहाँ जो सुकून मिलता था ना जाके, ऐसा लगता था कि मैं अपने घर पे. सर ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं इनके लिए बोल रहा हूँ. और मैं आपको ही बोलता था मैम कि ऐसा लगता था कि मैं अपने घर जाके काम कर रहा हूँ. और सेट पे अगर कोई काम नहीं करता था ना, मुझे लगता था हमारा लॉस हो रहा है. आई स्वेयर मैं ऐसे बोलता था कि यार हमारा लॉस हो रहा है, ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे. मैम को ऊपर तक पता नहीं चलेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि कॉस्ट्यूम वाले अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे. मैं टाइम पे आता था, टाइम से नहीं जाता था, लेट जाता था. ये सही बात है, ये टाइम से आते थे सारे ही एक्टर्स. बहुत time पे. और बहुत चैलेंजेस होते हैं शूटिंग पे कई बार, उसके चलते जो है जब शिफ्ट बढ़ती क्या है ना, खुद आना नहीं पड़ता था, गाड़ी आती थी ना प्रोडक्शन की. सरकार चलो is चलो waiting रेडी हो गया. outside. चलो रिच प्रोडक्शन. सरगुन कुछ कहें आप शो के बारे में. नहीं, बस आई थिंक दिस इज़ अ कोई हाँ. तो मुझे वैसे भी लगता है कि हम लोग आजकल बहुत कम लव स्टोरीज़ बोलते हैं, प्योर लव स्टोरीज़, और बहुत दिल से लिखी गई कहानी है.
एक आशिक की कहानी है और अभिषेक को जब हमने कास्ट किया, चंडीगढ़ का लड़का है, मारपीट करता रहता है और हमने इसे रोते हुए भी बहुत देखा है, तो हमें लगा कि ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है, ये लड़का परफेक्ट फिट बैठता है और उसके ऊपर से इसने बॉडी बहुत अच्छी बना ली थी, तो इसकी डिमांड पे हमने बहुत सारे शर्टलेस सीन्स भी लिखे हैं, तो जिसको आशिकी में इंटरेस्ट ना हो वो इनके शर्टलेस सीन्स के लिए आ सकते हैं। Shizan, I think this is he is one of our most different castings that we have done in any of our shows. जो शिजान ने काम किया है आपने ना उसे पहले कभी करते देखा होगा और आई थिंक इसके बाद तो वापस हीरो प्ले करेंगे तो ना दोबारा देखेंगे आप, बट ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब और बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था पर इन्होंने बहुत प्यार से निभाया। अमनदीप हमें मैं फर्स्ट टाइम याद दोनों के मुंह से सुन रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ा डरता हूँ, आई स्टिल जब भी रवि भाई का फोन आता ना आई गेट स्केयर समटाइम, अरे फोन क्यों आया कि अब ये फिर डांट देंगे। अब क्या हो गया? मुझे एक्चुअली इन लोगों के लिए डर था, मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर था, मुझे इन तीनों के लिए डर था। जिस दिन रवि इनका प्रोमो डायरेक्ट करने गया उसने बोला कि मैं आज इनका प्रोमो डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगा गए आज इन तीनों में से कोई एक रोते रोते तो ज़रूर फ़ोन करेगा, पर तीनों नहीं रोए। सो यस, ऑलरेडी बहुत रो चुके हैं ना लाइफ में, अब कितना रोएंगे? अमनदीप एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और ये तो हमें इसलिए पता था बिकॉज हम इनके साथ बादल पे पाँव पे काम कर चुके थे। इस शो में मैंने उन्हें कहा था कि आपको बेहद खूबसूरत लगना है बिकॉज जिस हिसाब से वो आपकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है, आप सिर्फ एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं, आपको एकदम खूबसूरत भी लगना है एंड शी इज़ लुकिंग सो स्टनिंग इन द शो। जितनी बार रवि ने एडिट देखा उसने कहा क्या सुंदर लग रही है लड़की, क्या प्यारी लग रही है लड़की। दूसरे वाले शो से अच्छी? हाँ, ऐसे नहीं बोलते। सो अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस शी इज़ ऑल्सो लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल और कहते हैं ना हर शो में आपका एक हुक्म का इक्का होता है, हमारा वो हुक्म का इक्का राजेंद्र जी थे। वाह चावला वाह, बिकॉज उनके शोल्डर्स पे हर लव स्टोरी में एक आदमी ऐसा होता है जिसकी वजह से लव स्टोरी शायद पूरी ना हो, तो वो ये थे एंड ही इज़ डन, मतलब ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छा काम करते ही हैं बट इन्होंने इसमें और भी अच्छा काम करा है एंड हिज केमिस्ट्री विद हिज डॉटर, शी इज़ प्लेइंग हिज डॉटर, इज़ ब्यूटिफुल। सो तुझसे आशिकी इज़ फॉर ऑल दोज पीपल जिन्हें लव स्टोरीज़ पसंद है, कॉलेज लव स्टोरीज़ पसंद है, बहुत सारा हंसी मजाक है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा दुख है, बहुत सारा एक्शन है एंड इट्स वन ऑफ आवर पेट प्रोजेक्ट्स एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि ये 6 जून को आ रहा है। तो 6 जून को ये 5 बजे पहला एपिसोड आएगा, उसके बाद से एवरी थर्सडे एंड सैटरडे। हाले दिल इज़ मंडे फ्राइडे, सो हाले दिल इज़ मंडे एंड फ्राइडे 5 PM, मंडे एंड वेंसडे 5 PM एंड तू आशिकी है इज़ थर्सडे एंड सैटरडे 5 PM। सो आप लोग 6 जून को 5 बजे पहला एपिसोड देख सकते हैं। यस, नाउ आई थिंक वी कैन कॉल द सेकंड टीम। वो ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं हमारी Wow, बारी कब आएगी। congratulations for that. But we'll play, before you leave, we request you to play the trailer. Playing the trailers? Where do you want to play the trailers? Here? No, but then you'll have to move the flags back. Let's talk to Manisha and then we can play the trailers in a साथ में. So, ladies and gentlemen, कैसा लगा? मनीषा रानी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मनीषा रानी का पहला शो है ये, पहला एक्टिंग जॉब है एक्चुअली उनका और जैसा कि हमने पिछली बार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये शो बहुत ही प्यारा है और मनीषा जैसी ही एक लड़की के बारे में शो है, बस इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना हो वो हम प्रार्थना करते हैं, पर मनीषा जैसे ही एक कैरेक्टर के बारे में शो है और बहुत प्यारा काम किया है इसने और बहुत खुशी है मुझे कि लोगों को ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। आप पहले क्या कहेंगे, उसके बाद हम बाकियों तक जाएंगे। चलो पहले आप नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा। पहले मैं ही बोली। हेलो हाय नमस्ते, कैसा लगा आप लोग को? सीटी वीटी नहीं बजाएं यार, एकदम ठंडा। हाँ ठीक है, थैंक यू। क्या तुम मिस? अच्छा रियल लाइफ में नहीं है तो रियल लाइफ में सीटी बजा सकते हैं, चलेगा। चांस मारिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा। मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है जिसमें मैं लीड की हूँ और मेरे लिए ये सीरीज़ अभी भी मुझे नहीं पता, मैं देखूँगी तब मुझे समझ में आएगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि सिर्फ मैं की हूँ और इस सीरीज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे एक्चुअली कैमरा फेसिंग करना बहुत कुछ नहीं आता था।
मुझे मेरे डायरेक्टर जय सर ने, कभी हर्षद जी ने, कभी निशांक जी ने, हेलो हेलो हाय, हाँ निशांक जी, आज मैं थोड़ी खुश थी कि मेरे को बहुत टेंशन था कि ये आ रहे तो मेरे को सैंडल लंबा वाला पहनना पड़ेगा, अभी आ ही गए यार, अभी चलिए ठीक है आ गया, अच्छी बात है। हाँ तो मुझे इन्होंने कई बार सजेस्ट किया, इन्होंने सजेस्ट किया, और रवि जी हमेशा आते थे और बताते मनीषा स्क्रिप्ट ऐसे करना है, ऐसे करना है, और फिर मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। मेरा आईज बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लिंक ब्लिंक होता था, मेरे को समझ में नहीं आता था क्या करना है, लेकिन इस सीरीज़ में मैंने सिर्फ सीखा है। परफॉर्मेंस कैसा है वो जब आप लोग देखोगे, होपफुली मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया। बाकी इस सीरीज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने अरे यार यही होता है, सरगुन दी, रवि जी से, मतलब इनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि ये लोग इतने अच्छे हैं। मैं जब भी सेट पे जाती थी मेरे को कभी लगता ही नहीं था कि सेट पे, हमको लगता था कि यार हम कहीं तो आगे मस्ती फुल करते थे ना। हाँ बहुत मज़ा किए हैं हम। बाकी थोड़ा ये लोग को बोल, हाँ बाकी मैं थोड़ा और भी बोल दूंगी बाद में। आई थिंक हमारे इस शो की कास्टिंग सबसे वेरिड कास्टिंग है। सब लोगों ने अलग अलग जगह से आए हैं, दे आर नॉट, मतलब इन चारों को एक ही फ्रेम में देखना इज़ सो ब्यूटिफुल। पहला एपिसोड हमने देखा है एंड दे आर ऑल फैबुलस। आई एम श्योर इस शो के बाद इन सबके एक्टिंग जॉब्स की तो बहुत तारीफ होगी। हमारे लिए इन दोनों शोज़ में सबसे डिफ़िकल्ट कास्टिंग, जो मतलब लिटरली रात भर तक चलती रही, एक रात पहले तक, वो कुशाल की कास्टिंग थी। हमें कोई सही कुशाल मिल ही नहीं रहा था। बहुत एक्टर्स मिले पर कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी आंखों में मासूमियत हो। एंड आई रिमेंबर हमने सबसे पहले जब हमें किसी ने निशांक का नाम सजेस्ट करा तो उन्होंने कहा ये राइटर हैं। आप लोगों ने जमतारा देखा है नेटफ्लिक्स पे? ये जमतारा के राइटर हैं। पहले तो इनकी वो राइटिंग के लिए हम ताली बजा दें, बहुत प्यारा शो लिखा है इन्होंने। सो मुझे लगा राइटर हैं और ये एक्टिंग भी करेंगे, और हमने इनकी फ़ोटो देखी और मैंने जूम करके आंखें देखी और मैंने रवि को कहा इसकी आंखों में मासूमियत है। एंड ये चलकर आ रहे थे हमारी तरफ अगले दिन, और रवि और मैंने कहा मिल गया, कुशाल मिल गया, हमें उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। बट इन्होंने इतना प्यारा काम किया है, ये इतने अच्छे लगे हैं शो में, ट्रेलर में तो अच्छे लगे ही हैं, शो में भी बहुत अच्छे लगे हैं। एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ हाले दिल। नाउ यू कैन टेल अस व्हाट यू वांट टू से। आई डोंट नो, मैं अभी भी आया हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हाले दिल का पार्ट हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, आई हैड अ लॉट ऑफ फन। और जैसे उन्होंने कहा कि जब कास्टिंग हुई थी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसे बदलने वाली है सडनली, बिकॉज आई हैड टू सडनली गो एंड स्टार्ट शूटिंग। बट फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन आई मेट दीज टू एंड व्हेन आई हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड हाउ दे एक्सप्लेन टू मी व्हाट इट इज़, I always was just very happy doing it, and I'm very glad that they saw their Kushal in me, because that's a very encouraging thing. Every time they tell me that I've done a good job, I'm very very happy about that. मैं अभी तो nervous हूँ देखने के लिए कि क्या किया है, पर yeah, that's that. हमारे शो के तीसरे पिलर मिस्टर हर्षद, आई एम श्योर कि इनको टीवी पे बहुत टाइम बहुत लोगों ने देखा है, एंड आई थिंक ही वाज ऑन अ लॉन्ग ब्रेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इन्होंने टीवी से लॉन्ग ब्रेक लिया था, बट ये वापस आए हैं इस शो के साथ। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप एक बॉक्स में नहीं डाल सकते हो, आप उनको सही गलत ऐसे नहीं कह सकते हो। आपको उनके साथ प्यार भी होता है, उन पे गुस्सा भी आता है, उनसे नफ़रत भी होती है, पर आप उन्हें समझने की कोशिश भी करते हो। It was such a layered and complex character, but Harshad did such a fine job. I know कि इनके दिमाग में भी बहुत सवाल थे when he started off with हाले दिल, but I will be very happy to know कि now he's very happy that he's a part of it. Absolutely. आपने बिल्कुल सही बोला कि काफ़ी लंबा sabbatical लिया था मैंने टीवी से, for this reason only, because I wanted to explore the OTT space, and ड्रीम यादा के बारे में हमने पहले भी सुना है। दे आर द पायनीज, इन्होंने यूट्यूब सीरीज, आई थिंक दे द फर्स्ट वंस टू कम आउट विद दैट कॉन्सेप्ट इन इंडिया। सो पहले तो कूडोज टू दैट, दैट्स अ वेरी बिग फर्स्ट स्टेप इन आवर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दैट दे हैव टेकन, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम इज यू नो it's a opportunity that I didn't want to miss. And शूटिंग के दौरान बहुत मज़ा आया। हमारा जो
चंडीगढ़ चंडीगढ़ नहीं कहाँ खरड़ खरड़ में जो मुझे तो बहुत मज़ा आया। बहुत ही अच्छा सुकून वाला माहौल है जहाँ हम रहे थे। जो सेट भी है हमारा, वहाँ पे पूरे खेत और खलिहान है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड बहुत अच्छी वाइब है। एंड वो एनर्जी जो एक सेट पे होती है वो वैसी तभी होती है जब वहाँ के लोगों की वो एनर्जी होती है। तो दैट itself says a lot about both of you, which I had to mention. एंड अदरवाइज कैरेक्टर तो आप लोग जब शो देखेंगे आपको पता चल ही जाएगा। ज़्यादा कुछ मैं रिवील अभी नहीं करूँगा, बट आई होप यू गाइस एंजॉय। एंड जो भी इसमें परफॉर्मेंसेस दी हैं हम सब ने, इनफैक्ट वो आप सबको पसंद आए। थैंक यू। इस शो में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मनीषा रानी यानी इंदू को विवेक जी की मिसेस को इनसे है, जेनिफर। शी इज़ डन अ लॉट ऑफ साउथ फिल्म्स बिफोर। This is South, right? This is your first Hindi project? It is. This is her first Hindi project. to release, yes. And जितनी ये प्यारी दिख रही है उतनी शो में तेज़ हैं ये, और बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। And we were very very happy to have her on board. Jennifer, please. थैंक यू। मैं काफ़ी पहले आ गई, मैं फिर भी नर्वस हूँ। बट आई रिमेंबर जब मैंने पहली बार डॉली का रोल पढ़ा था, मेरे टेक्स्ट मैसेज में आया था, तो आई रेड द रोल एंड आई वाज लाइक वाओ चैलेंजिंग, ऐसी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक एज एन एक्टर मुझे चाहिए था कि मैं वो रोल करूँ। एंड ये मैंने सोच तो लिया, बट जब मैं सेट पे पहुँची एंड यू नो व्हेन द आगे आगे जब मुझे और भी कैरेक्टर पता चल रहा था, इट बिकेम सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लाइक हर। बट आई थिंक इवेंचुअली यही हो गया कि यू नो बिकॉज आई हैड टू मेक एफर्ट, मुझे एफर्ट करना पड़ा उसे, उसके चॉइसेस को पसंद करना या जो भी वो कर रही है उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग करना उस सफ़र में। आई थिंक व्हाट हैपेंड इज़ कि मैं आई स्टार्टेड एम्पैथाइजिंग विद हर, तो मुझे वो अच्छी लगने लग गई जैसे भी वो है। तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि पहले ही पढ़ते आई वाज लाइक ये तो बट या आई हैड ब्रिलियंट टाइम और सबके साथ काम करके भी इतना मज़ा आया। मनीषा के साथ मेरे बहुत कम सीन्स थे, पर जितने भी सीन्स थे वो तो ऐसी मतलब एक तो बेझिझक बात करती है, मुझे उसकी बहुत बात अच्छी लगती है कि ये जैसी है वैसे बस कुछ भी बोल देती है, विच इज़ इंस्पायरिंग। वो इतनी हर सेल्फ है कि इट इंस्पायर्स यू टू बी योर सेल्फ ऑल्सो। तो और बहुत बहुत मजाक करती है, तो मज़ा आता है। बट कुछ भी ऐसी सीरियस वाली वाइब नहीं होती उसकी, और बहुत मज़ा आ जाता है उस बात में। और निशांक के साथ was also such a wonderful time to work with him. I think we have a lot in common, so we ended up becoming really good friends. So I really had a really good time working with him as well. And Harshad and I had such beautiful scenes together as well. Yeah. We did. Now we did. Well, they were beautiful scenes. You will see. So yeah, but actually beautiful scenes beautiful थे, लेकिन एक scene था जो which was like a lot of not so beautiful and बहुत गुस्सा, which was actually my favorite scene with Harshad, I think. Yeah, but yeah, I had a brilliant time just, and like the entire crew. I want to say thank you to everyone who was in Chandigarh with us. They were such a beautiful crew. They're so helpful, so loving, from the ADs to the costume people and सब लोग सबके नाम मैं ले लेती, but I don't think we have that much time and I'm going to stop talking now because I've spoken a lot. All right, okay, here, where am I going? बस Sorry, मनीषा रानी तुम बता I दो। forgot to mention our director's name, Jay sir. I don't think he's here, but उनके साथ बहुत मज़ा आया। I think he, being the captain of the ship, he did a fab job. कि हम चारों से जो performances निकलवाई हैं वो उनके वजह से बहुत कुछ हुआ है कि कौन कहाँ कितना ऑफ ट्रैक जा रहा है, ऑन ट्रैक आना चाहिए। सो बिग थैंक्स टू हिम ऑल्सो। मनीषा रानी, तुमने रोमांस किया, कैसा लगा तुम्हें? फिर उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं ना। रोमांस मुझे तो एक्चुअली क्या होता ना, ऐसा नहीं कि रियल लाइफ में तो सभी करते हैं यार, लेकिन मेरा वो था कि मुझे रोमांस के टाइम बहुत हंसी आ जाता है बहुत, तो फिर मैं एक बार दो बार तीन बार बोली यार मनीषा कर दो, अब जो भी वो कर दो। फिर जो मेरे डायरेक्टर सर थे जय सर, वो बोले अरे नहीं मनीषा समझो बात को, जज्बात को। फिर हम बोले यार ये लोग करवा देते हैं, जब मेन टाइम आता तो कट कर देते। एक होता नहीं यार, जब लोगों को नहीं करना तो करो, और जब एक फीलिंग्स जग जाता तो कट कर देते। मैं बोली यार ये सब ना
मैं बोली यार ना ये इस लाइन का ना बहुत अलग सीन है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। पहले लोगों को करना नहीं होता, और जब लड़का लड़की करना स्टार्ट कर देता तो कट करवा देते। तो मेरा वो था कि हाँ, रोमांस वाला सीन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। जब आप देखोगे स्क्रीन पे मनीषा रानी कर रही है तो आपको मे भी अच्छा लगेगा, बट हाँ मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था। इसके साथ तो मौका नहीं मिला, बट कोई नहीं। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि पति मेरे नहीं, सीजन बहुत हैं तो कोई बात नहीं, मिलेगा मौका। हाँ मतलब एक्चुअली आप मतलब ये मेरे वो बने हैं ना, मतलब अब अभी नहीं बताना ना, अभी नहीं बताना है, अदरवाइज इसको भी हक तो रोमांस करने का। वो मुझे बहुत ज़्यादा वो बनाती है ना सावित्री टाइप, अदरवाइज देखो तो ज़्यादा हक इनसे ज़्यादा इनका ही था। अरे पति बस नाम का, जो काम है वही काम का होता है ना, बताइए। हाँ वही है, बट आपको मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम वैसे लिखिएगा। अगले सीजन में, नेक्स्ट सीजन में इंदु को थोड़ा सावित्री से हट के थोड़ा वो बना दीजिएगा, मतलब कि जो करे उसी पे धड़े। हाँ तुम अपनी बीवी को ये इंटरव्यू मत दो। अरे मैं तो सीरीज का बात कर रही हूँ ना, रियल। हाँ वही तो, वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज एंड एक्टिंग, कि अगर इसको मौका मिला तो इसको भी मौका मिलना चाहिए, पता है। सही बोले ना। वैसे भी चांस ढूंढ रहे थे। ये कौन है जो चांस मांग रहे बार बार? किधर? किस चीज का चांस? एक्टिंग का चांस? ये कोई बात हुई बोलने वाली? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो अच्छा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस, रोमांस वाला तो बता दिए, बस बहुत है। बहुत है, ज़्यादा बोलेंगे तो फिर आप लोग को अपने अपने घर जाना पड़ेगा। अभी कम ही बोला है इन्होंने। बट 6 तारीख को 1 बजे हाले दिल आप लोगों के सामने होगा, आप लोगों के लिए प्रस्तुत होगा, प्लीज़ देखिएगा। और एक जो ख़ास बात आपने जो है ट्रेलर के अंदर भी नोटिस की होगी, वो जो विवेक जी की मिसेस वाली जो बात है, ये हमारे समाज में पर्टिकुलरली ऐसा रहता है कि लेडीज़ जो हैं वो शादी जब उनकी होती है तो वो अपने मायके से केवल दूरी नहीं बनाती, अपने परिवार से केवल दूरी नहीं बनाती, अपने पहले नाम से भी बना लेती हैं, और वो फिर अपने पति के नाम के ज़रिए जाने जाती हैं, मिसेस शर्मा, मिसेस गुप्ता, मिसेस दुबे, मिसेस मेहता, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये विवेक जी की मिसेस की इंदु बनने की कहानी है। जब इंदु का जो कैरेक्टर है वो लिखा गया, तो मैं आपको बता दूं, हर कैरेक्टर किसी ना किसी पे बेस्ड होता है। इनका कैरेक्टर मेरी मदर पे बेस्ड है। मतलब, और मैं हाव भाव की बात कर रहा हूँ, जो जिस तरीके की एक मासूमियत आंखों में चाहिए थी, जिस तरीके का बोलने का अंदाज़ चाहिए था। मेरी मदर गोरखपुर से हैं, तो उनका जो बोलने का अंदाज़ है, जो मनीषा का बोलने का अंदाज़ है, जो ट्रेलर में भी आपने देखा और शो में भी आप देखेंगे, बहुत जो है, जो कैरेक्टर का डिज़ाइनिंग था, उसकी नींव जो है मेरे और सरगुन के लिए मेरी मदर थी। और कई बार हमने आपस में डिस्कस भी किया कि तुम्हारा नाम इंदु ना रख करके सुधा रखते हैं। देन वी डिसाइडेड टू कीप इट मोर अ लिटिल न्यूट्रल, जस्ट बेस द कैरेक्टर and just kind of move forward, and therefore it's Hindu. So हमारे लिए बहुत कई लेवल्स पे बहुत स्पेशल शो है। आप सभी लोग बहुत स्पेशल हैं, एंड आई रियली होप कि ये हाले दिल जो है वो हर किसी का दिल जीत जाए। Thank you so much, and congratulations once again to the entire team of Halidil. And moving ahead, we can have the media introduction. But before that, we have also heard about your new film, and that is. बॉम्बे में देखी है? पंजाब में तो कई कोई shows हैं। पंजाबी नहीं है। पंजाबी कोई नहीं है आप में से? वी नीड सम पंजाबी है पैंट्स। जी? पिक्चर दिखा दें? अच्छा, ट्रेलर आपको चलिए दिखाते हैं थोड़ी देर में। हाँ, एक्चुअली वी कैन प्ले द ट्रेलर। हाँ, है ना? तो एनी क्वेश्चंस आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें मनीषा से, सरगुन से, जेनिफर से, हर्षद से, निशांक से। शोज किए काफी, एंड यू आर वेरी नोन। सुनिए ना प्लीज, आपको जोर से बोलना पड़ेगा। चेक। हेलो मनीषा जी, आपसे सवाल ये है कि रियलिटी शोज आपने काफ़ी किए हैं, लोग आपको जानते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन बात करते हैं जब आपका ये डेब्यू वेब सीरीज़ है, इसमें क्या कुछ सीखने को मिला, और जिस तरह से आपका कैरेक्टर है वो काफ़ी इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, तो टेक अवेज क्या क्या थे शोज़ के बाद भी? क्या कुछ आप इंदु से लेकर अपने पास रखे, उसके बारे में पूछना।
एक्चुअली मैं आज के पहले जो भी वीडियोस बनाती थी, सिर्फ आप लोग देखते होंगे वो ज़्यादा फ़नी, कॉमेडी, मस्ती मजाक वाले वीडियोस रहते थे, क्योंकि मेरा हमेशा से था कि लोग मुझे कमेंट्स भी वैसे ही करते थे कि मनीषा दी आपका वीडियो देख के मेरा दिन बन गया, मूड फ्रेश हो गया। तो मैं मोस्टली चाहती थी कि मैं लोगों को हंसाऊं, तो मेरा कंटेंट भी वैसा ही रहता था। लेकिन जब मैं ये सीरीज़ की तो मुझे सबसे पहले जब सरगुन दी का कॉल आया था, उन्होंने यही बोला था कि मनीषा इसमें तुम जब वी मेट की करीना और वो कौन सा मूवी था रानी मुखर्जी वाला, कुछ कोई मूवी था ना, एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, रानी मुखर्जी, बहुत सारी मूवीज़ का कि हाँ कभी अलविदा ना कहना कि रानी मुखर्जी, इसमें तुमको रोना भी है, हंसना भी, तुम्हारा सारा इमोशंस निकलेगा, जिससे तुमको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार, जब हम लोग रील बनाते हैं तो बस एक कंटेंट वो अपने अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जब मैं सीरीज़ करूँगी उसमें मुझे कितना कुछ सीखने मिलेगा। और यहाँ जब भी इमोशनल आता भी कुछ था तो स्टार्टिंग में मुझे रवि जी ने भी बोला भी कि जब कुछ इमोशनल सीन होता है ना तो आंखों में बस नमी होना चाहिए और डायलॉग डिलीवरी एकदम तगड़ा होना चाहिए। उसके लिए हम लोग हाँ 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 ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही है कि मैंने इस सीरीज़ से हंसना, रोना, गुस्सा करना, चिल्लाना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जब मैं चिल्लाऊंगी तो कैसी लगूंगी। नॉर्मल लाइफ में भी नहीं चिल्लाती हूँ, वीडियोज़ भी मेरे वैसे नहीं रहते हैं। तो मैंने इस सीरीज़ से एक्चुअली बहुत कुछ सीखा। अगर मेरा इस सीरीज़ का क्रेडिट देना मैं चाहूँगी ऑफकोर्स आपको और जय सर को। जय सर ने भी बहुत बताया है कि यार ये मनीषा ऐसे करना है, वैसे करना है। इन लोग ने भी हेल्प किया थोड़ा थोड़ा, आपने भी किया, हाँ थोड़ा ही, बाकी मैं भी तो कुछ करूँगी ना। तो हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। मैं तो बोल ही रही हूँ, अगर कुछ सीरीज़ में भूल चूक होगा ना तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट है, ठीक है। बाकी तो मेरे ऑडियंस को इतना प्यार करते हैं कि इसमें भी बोलेंगे मनीषा रानी जिंदाबाद, क्या एक्टिंग की, क्योंकि अभी से ही लोग बोल रहे हैं ना, इसीलिए। हाँ, She's my favorite person ever. काफ़ी इमोशनल डेप्थ है कैरेक्टर्स में आप लोग के, स्पेशली जो इंदू को सपोर्ट करते हैं सीन में, हम जिसे ट्रेलर में देखते हैं, तो कैरेक्टर जिस तरह से था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है और कहीं ना कहीं काफ़ी सहमा हुआ या काफ़ी सॉफ्ट भी है। तो कैरेक्टर कैसे आपने पकड़ा और कितना इजी डिफिकल्ट रहा? मेरा कैरेक्टर जितना मुझे समझ में आया वो बहुत ही पैशनेट आदमी है, लेकिन सक्सेस नहीं मिली है उसे अब तक लाइफ में। तो दैट्स वाई लाइक यू सेड वो थोड़ा सा सहमा हुआ है, थोड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको, क्योंकि उसके आसपास के सब लोग उससे थोड़े से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उसकी वाइफ उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो वो कॉन्स्टेंटली लूजरिश फील करता है। पर बट आई थिंक उसके दिल में एक बहुत genuine kindness है, and that's what makes this character really special, and he's very passionate about his own truth. So that's something that I thought that's what I need to achieve. The truth with which he operates, the genuinity with which he operates, वो मुझे वहाँ तक पहुँचना था to really play the character well, and that's I think that's what I understand about him. वो इनोसेंस कोई एक्टर कर नहीं सकता, वो तो या लोगों की आंखों में होती है या नहीं होती है। सो आई थिंक इन सब में इनहेरेंटली वो कैरेक्टर्स की एक चमक थी जिसकी वजह से वो इसको इतनी ट्रूथफुली प्ले कर पाए। पीछे किसी को एक सवाल पूछना था, चीख के पूछ लो। हेलो मैं राइटर और एक्टर ऑलमोस्ट साथ साथ ही बना हूँ, बिकॉज मैंने थिएटर से शुरू किया था और उसके बाद फिर मैंने लिखना भी शुरू किया, डायरेक्ट करना भी शुरू किया, एक्टिंग करना, अब तक भी मैं थिएटर करता रहता हूँ। तो ऑडिशंस का प्रोसेस शुरू हुआ वंस आई केम टू बॉम्बे, थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आए। जब मुझसे लोग ये पूछते भी हैं कि कैसे काम मिलता है, मेरे एक्सपीरियंस में यही हुआ है कि काम से काम बनता है। मैंने पहले कुछ काम किया हो, किसी ने वो काम देखा हो, तो उन्हें लगता है कि दे कैन ट्रस्ट मी विद अ bigger role. I think this is what happened here also. They saw my work a little bit and they said that they... Not at all. I'll tell you honestly, your casting has nothing to do with what you have done before. Oh. Your casting was literally you walking into our front porch and the sunlight falling on your face. Wow. I'm glad that there was sun out that day. We were in a overnight crisis casting को लेकर के. किसी और एक्टर के साथ मनीषा के वर्कशॉप, सभी एक्टर्स के वर्कशॉप्स हो चुके थे. किसी वजह से हम उनको जो है शो में नहीं ले पाए, बट जो भगवान करता है, जो प्रभु करते हैं, महादेव करते हैं, वो बढ़िया के लिए, अच्छे के लिए करते हैं.
और हर हर महादेव। और हम मुझे याद है कि रातों रात कास्टिंग करनी थी हमको, और हमें ये शो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कच्ची कास्टिंग नहीं हो सकती थी। तो हमने बहुत लड़कों से बातचीत करी, सब बहुत अच्छे थे, सिंसियर थे, मगर बात कुछ बनी नहीं। हमने, मेरे एक दोस्त ने निशांक का नाम सजेस्ट किया, मैंने इसका काम देखा क्योंकि देखना होता है, बट दैट्स नॉट एब्सोल्युटली नॉट द रीज़न वाई वी गॉट हिम ऑन बोर्ड। क्योंकि मुझे याद है कि निशांक हमसे मिलने के लिए आ रहा था और इसका लुक बिल्कुल ही अलग था, मगर द वे ही वॉज वॉकिंग और जो इसकी आंखों के अंदर एक सच्चाई थी, बस उतना काफ़ी था हमारे लिए। हमें पता था हमें हमारा कुशाल पहले ग्लिम्स के अंदर, पहले 5 सेकंड के अंदर हमें मिल गया, उसके बाद हमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी। आई एम सो ग्लैड। पर एक जर्नी मैंने राइटर से एक्टर वाली वो की, जो मैं इनसे मिलने आया तो मेरा फीडबैक था कि ये राइटरों की तरह मत घूमो यार। मेरे बाल बड़े थे, दाढ़ी बड़ी थी, मैं वेल ग्रूम नहीं रहता हूँ, बट उसके बाद आई जस्ट लाइक, आज देखो कितने सुंदर लग आज आई मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्लीन अप। यस। होपफुली। आप बहुत प्यारी बात बोली, हम भी खुश हुए। जी, आप ऊंची बोलेंगे कि माइक आ गया आपके पास? Hello. Yeah, it's working. Hello, everybody. My question is for Sargun ma'am. Socken and Sockne 2 has given a massive weekend opener. My question is, did you guys anticipate this kind of response from the audience? फ्रैंकली पहली सॉन्कन इतनी बड़ी हिट थी, वो स्लीपर हिट थी, वो मतलब वो हमें पता नहीं था कि इतनी बड़ी हो जाएगी और वो बहुत बड़ी हो गई। तो सेकंड से हमें उम्मीद थी, पर हमें डर भी था, क्योंकि पिछले 4 सालों में थिएटर्स जाने का जो मन है, लोग बहुत डिफरेंट तरह बना रहे हैं, तो डर बहुत था। बट थैंकफुली ऑडियंस ने हमारा वो डर दूर कर दिया। मैं तो नहीं सोई थी 30th मई तक। 30th मई की रात को मैं पहली बार सोई हूँ पिछले 3 महीने में। बट या थैंक यू। हेलो रवि जी, आप एक्टर हैं, अभी प्रोड्यूसर है, तो आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो आप क्यों एक्टिंग नहीं करते? मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको, अब हाथ खड़ा कर। अच्छा जी, नमस्कार जी। हाँ जी, आपने क्या पूछा एग्जैक्टली? आप एक्टर है और प्रोड्यूसर भी अभी है, और आपका खुद का प्रोडक्शन है, तो आप खुद के प्रोडक्शन में आप भी काम क्यों नहीं क्योंकि वो हमें डेट्स नहीं दे रहे हैं। उनकी सारी डेट्स रामायण ने ली हुई हैं। मेरे को नहीं बोलना है, अब तो पता है। वो मुझे ही डेट्स नहीं दे रहे हैं जी। उसके बाद जब वो हमें डेट्स देंगे मैं ले लूँगी। Hello everyone. This is Aishwarya Nair from India Forums. My question is for Sargun ma'am and Ravi sir. It's always Sargun and Ravi and never it's Ravi and Sargun. So कोई story है इसके behind, या is it branding or does it has a deeper meaning? इसका जवाब वो देते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैं दे रही हूँ। मैंने एक्चुअली एक फिल्म के वक्त बोर्ड मतलब यहाँ पर पोस्टर पे रवि दुबे एंड सरगुन मेहता लिखा, तो जब वो पोस्टर बन के आया रवि ने बहुत गुस्सा किया। ही इज़ लाइक कि तुमने रवि दुबे पहले क्यों लिखा? मैंने कहा बिकॉज आपका नाम है, लाइक वेर टुगेदर, पर तुम्हारा नाम पहले क्यों नहीं है? ही इज़ लाइक तुम्हारा नाम पहले होगा, हर जगह तुम्हारा नाम पहले होगा। एंड आई डोंट थिंक दैट, आई थिंक ही विल सेट अ प्रेसिडेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बीवी को आगे रखते हैं, और उसने तो हमेशा से ही मुझे आगे रखा है। मैं 2 रुपए का काम करूँ या 10 रुपए का करे, तब भी ये बोलेगा कि सरगुन नहीं करा। तो वो मुझे ओवर क्रेडिट देता है, शायद इसीलिए वो मेरा नाम पहले लिखता है। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ये फैक्ट ये है कि मैं आपको क्लियर ही बता दूं कि मेरे ड्रीमियाता एज एन एंटरप्राइज में जो लीडर है, जिसके पीछे हम लोग वी रैली अराउंड ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इज सरगुन मेहता। तो सरगुन का ही नाम वो इसलिए नहीं कि कोई प्रेसिडेंस क्रिएट करना है या कोई ऑप्टिक क्रिएट करना है, ऐसा वो बात बिल्कुल भी नहीं है। आप ड्रीमियाता में आके किसी से भी बात कीजिए, सरगुन इज द किंग, क्वीन, emperor, empress, whatever. I am the commander in chief. That's what I am, and I'm a good one at that. That I'll not take any credit away from. But Sargun is the queen. So we all stand strongly behind her and her vision. So my question is to Sargun ma'am. Like what resonated the most in Sukanya 2? Sukanya 2. Like the storyline or the performance or something else? आई थिंक लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा कॉमेडी लगता है,
बहुत ज़्यादा टेंशन से गुजर के आए हैं ना हम पिछले कुछ महीनों में. सो आई थिंक पीपल आर रियली एंजॉइंग द होल हार्टेड लाफ्टर दैट द फिल्म इज. थैंक यू. Hello, ma'am. Yeah, this side. Hello, Hi. Sasikal. How are you? Sasikal, very well. ji, So thank I you. have watched Sokan Sokane both. I love you guys. So Thank I you. just need to ask, as you are producer and you are an actor, as all you both are actors and partners in real life. So how do you balance this? How do you manage your relationship and work accordingly? हाँ, वी डोंट, ऐसे कोई टेक्निकल वो नहीं है यार कि 2.5 घंटे दिन में ये करो, 4 घंटे दिन में वो करो. व्हेन आई थिंक यू लव समवन एंड यू लव समथिंग, आप उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हो. तो आप जितना अपने काम को प्यार करते हो आप उसके लिए वक्त निकालते हो, जितना आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो आप उसके लिए वक्त निकालते हो. वो एक ऑटोमेटिक बैलेंस है लाइफ में जो बन जाता है. यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट फॉर इट. That's so cute. Thank you. थैंक यू जी. Yeah, yeah. देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है सस्टेनेबल तो 100% है. हाल ही में आपने सुना होगा, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कि कितना सच है कि झूठ है, या सच है कि गलत है या अफवाह है, मगर जो मैंने सुना है वो ये है कि आमिर सर भी अपनी जो अगली फिल्म में उसकी कुछ चर्चा थी, बट वो नहीं है. वेल, इररिस्पेक्टिव, ही इज तारे ज़मीन पर को यूट्यूब पे फ्री कर. ओके, एंड दैट्स अ कंफर्म्ड, वो भी कंफर्म नहीं है. चलिए, तो मैं आपको एक लेट मी टेल यू दिस, दैट सो फार वी आर 5 months into our business and we have been able to do extremely well. I'm not at liberty to discuss numbers with you, but we have been able to do extremely well and we have been able to really break through. तो मैं जिस पोजीशन में ड्रीम यात्रा ड्रामा के साथ मैं और सरगुन खड़े हुए हैं, we feel that it's a highly sustainable business. Yes, we would like to scale this to a much higher level. But many people ask us, why not an OTT app and why YouTube? वो कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा. तो मैं आपको बता दूं कि YouTube एक ऐसा ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म है जिसने आपके लिए एक बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाया है. आपके कंटेंट को कोई भी अगर दूसरा यूज़ करता है तो आपका UGC उसको ऑटोमेटिकली क्लेम कर लेता है. आपका कंटेंट प्रोटेक्टेड है, आपकी अपनी ऐप पे प्रोटेक्टेड नहीं है. जो फायरवॉल्स हैं, आप कितना भी पैसा डाल दें, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वल्नरेबिलिटी. कोई ना कोई आपका कंटेंट उठा के किसी पायरेटेड ऐप पे डाल देगा, आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे कहाँ पे. आप लाखों करोड़ों रुपए डाल करके कंटेंट बनाएं और वो अब्यूज़ हो जाए या यूज़ हो जाए, कहीं और यूज़ हो जाए, पायरेसी में खो जाए वो, तो इट्स नॉट फेयर. तो यूट्यूब से बेहतर हमें सेफ ग्राउंड, हम चाहते तो डेफिनेटली एक ऐप खोल सकते थे, जब चाहें तब खोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वी कांट गारंटी इट सेफ्टी, नॉट राइट नाउ. जब 10,000 करोड़ के हो जाएंगे ना, तब वी कैन गारंटी इट सेफ्टी ऑल्सो. जी, बंद हो गए ना. मेड इन इंडिया शोज देखिए ना, क्यों देखने हैं आपको कहीं और के शोज? हम वही कर रहे हैं जो हम 6 महीने पहले कर रहे थे. हम ऑल कंप्लीटली मेड इन इंडिया शोज बना रहे हैं, इंडियंस के लिए बना रहे हैं, इंडियन कल्चर में रूटेड बना रहे हैं. हम आज भी वही कर रहे हैं जो 6 महीने पहले कर रहे थे. आज अगर ये ड्रामाज जो है बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं या वॉट एवर इट इज़, मैं तो यही आपको इनकरेज करूंगा कि और प्लेयर्स आए मार्केट के अंदर, ऑल इंडियन शोज बनाएं और आप कंज्यूम करें, पूरा देश कंज्यूम करे. सो आई वुड इनकरेज यू ऑल टू नॉट जस्ट कंज्यूम ड्रीम यात्रा ड्रामा, बट आई वुड इनकरेज यू टू कंज्यूम कॉन्टेंट दैट्स मेड इन इंडिया. मेक इट नरिश, क्योंकि आप नरिश करेंगे तो हम और कुछ कर पाएंगे, हम ग्रो करेंगे तो हम आपको और कंटेंट दे पाएंगे. दैट्स दैट. लास्ट 2-3 सवाल पूछ लेते हैं, ये 1-2 जो है प्लीज. क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है. तो मैं क्यों सेंड करूंगी, मतलब फ्रेंड है मेरी. नहीं यार, उन्होंने देखा होगा, बट मैंने ये लोग का बिग बॉस खत्म नहीं हो रहा है कसम से. बिग बॉस से निकल जाइए प्लीज. वैसे मुझे पता है, मुझे देख के सब खुशी हो रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. जी जी जी. झीला, हेलो किस तरह से झीला यार. आपको पता है मनीषा मेरी पड़ोसी है और मुझे ये बात शो में आने से पहले तक पता ही नहीं थी. हम दोनों सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं,
और एक ही जिम में वर्कआउट भी करते हैं। बस बिल्डिंग का नाम नहीं बताइएगा हाँ, प्लीज। तो हाँ मतलब आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया, सॉरी। हाँ, सो शो का ये था कि जो इनके क्रिएटिव प्रोड्यूसर है अंकुर भाटिया, मैंने 12 साल पहले उनके साथ एक शो किया था, तो मेरी काफ़ी अच्छी उनके साथ रैपो थी। बट जब उन्होंने कहानी सुनाई मेरे को, जब उन्होंने बताया कि ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, और मेरा बहुत मन भी था इनके साथ पहले से काम करने का। इनफैक्ट हमारी कुछ बातें हुई हैं, आपसे नहीं बट आपकी टीम से कॉल आए थे, बट हमारा वर्कआउट नहीं हो पाया वो प्रोजेक्ट। लेकिन जब हमारी मीटिंग हुई, हमारी वर्कशॉप्स हुई, मेरे डेफिनेटली कुछ सवाल थे, लेकिन दे कन्विंस्ड मी, एंड मेरे को कोई रिग्रेट या कोई भी अफसोस नहीं है कि मैंने जो फैसला लिया वो क्यों लिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। एंड यस, ये कमबैक है 2, 2.5, 3 साल बाद ऑलमोस्ट मेरा, क्योंकि टीवी से मैं एक लंबा ब्रेक लेना चाहता था, एंड आई थिंक दिस वाज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने पहले बताया। I just said them, story, and yeah, that's it. बहुत अच्छा है यार, मनीषा इज द लाइव वायर ऑन सेट। ये तो हमारी एनर्जी का सोर्स होती थी। जब भी कुछ माहौल नीचे जाता था या कोई भी सैड होता रहा, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देती थी कि सब हंस पड़ते थे। मतलब मनीषा को सेट पे ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो दिल से, मतलब खुशी से उसके लिए दुआ ना करे। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर मनीषा बीइंग ऑन सेट। या सब प्यार करते हैं, बस जिसको करना चाहिए वही नहीं कर। अबे वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा, पता नहीं अंधा है कहाँ है, कुछ वही अंडरग्राउंड है, वही मैं बोल रही हूँ। मनीषा का स्वयंवर नेक्स्ट। पता नहीं। कैसे क्या? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ओह ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा। मैंने एक्चुअली क्योंकि मैंने पहले सब तेलुगु फिल्म्स की है, तो मुझे तेलुगु आती नहीं है, बट वो मैंने लर्न किया है, तो मुझे हिंदी बोलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक्टिंग करते हुए हिंदी बोलने में इससे ज़्यादा वाओ, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। मुझे बहुत मज़ा आया, स्पेशली हिंदी बोलने में। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइक सीइंग मी एज। थैंक यू सो मच। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे बात करी थी, मैं आपको बोलूँ कि 6 महीने पहले जब हमने प्लेटफॉर्म शुरू करा था, तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसे ड्रामा थे जो लोग देख सकते हैं। अब आपके पास चॉइस सिर्फ एक ही है, ड्रीमी आता ड्रामा देखने की। 6 महीने पहले हमें नहीं पता था कि हम ये बात कहेंगे, पर आज 6 महीने बाद कह रहे हैं कि अब आप सिर्फ ड्रीमी आता ड्रामा देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने रफ़ू या लवली लोला नहीं देखा है तो देख लीजिए। और इसके बाद हमारा लाइनअप बहुत ही अच्छा है। तू आशिकी है, हाले दिल, और एक और शो जो हम अनाउंस करने वाले हैं, रफ्ता रफ्ता, जिसका ट्रेलर अगले 2 हफ्ते में आ जाएगा। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू से दैट इट इज़ अ सस्टेनेबल बिजनेस, क्योंकि अगर नहीं होता तो हम और शो नहीं बना पाते। बट वी आर कमिंग अप विद अ ह्यूज लाइन ऑफ शोज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एक आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा, तुझसे तू आशिकी है, आई कीप फॉरगेटिंग द नेम। तू आशिकी है कि कास्ट के साथ एक थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, और उसके बाद मैं आपको सौकन सौकने का ट्रेलर दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो दिखाऊंगा, और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है ड्रीम यात्रा की तरफ से, वो भी सुनाऊंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच टू द कास्ट ऑफ हाले दिल। थैंक यू मनीषा, थैंक यू निशांक। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। थैंक यू। दिस इज़ विनय। मेरा आपसे ये सवाल था कि 4 साल से 8:55 पे जिस तरीके से आप उनका वेट कर रहे हैं, उन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया, आप एक आशिक की तरह उनके पीछे हो। ये शूट करते समय आपकी रियल लाइफ से आपने कितना कनेक्ट किया, कुछ आप उस बारे में बताना चाहोगे? क्या यादें ताज़ा हुई आपकी? भाई मैं बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, क्या बात है। तो नहीं, मैं पूरा आंसर देना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे याद है जब मेरे उडारिया में कुछ सीन्स बहुत कम होते थे, तो मेरे 10-15 दिन ही लगते थे। तो जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसके लिए मैं, सरगुन मैम हंस रही हैं, मैं इधर वाली आंख से देख पा रहा हूँ। जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसके लिए मैं प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच जाता था उसको पिक करने, उसको ड्रॉप करने,
फिर मैं घर जाता था, फिर लंच टाइम से 5 मिनट पहले मैं पहुंच जाता था क्योंकि मेरा ऑफ होता था, और मेरे घर से उड़ारियाँ का सेट 40-45 मिनट्स का था, और मैं ये रोज़ करता था। लंच खाता था, उसके साथ मतलब मैं घर चला जाता था, पैकअप पे उसको पिक करके घर ड्रॉप करता था और मैं घर चला जाता था। मतलब ये मैंने रेगुलर किया। तो जब मैं आशिकी पे आता हूँ तो मेरी हद पार हो जाती है। और तो कई लोगों ने बोल ही दिया हद नहीं होती, बट हद पार कर ही दी थी मैंने। तो हाँ, मैं ऐसा सा हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन उससे पहले कभी आपने ऐसे हद पार की थी, क्योंकि ये तो हुआ एक पार्ट हुआ आपका लाइफ का, लेकिन उससे पहले भी आपको प्यार हुआ ही होगा, तो कभी ऐसी हद पार की किशन कन्हैया हो गए हो आप। इसका नाम अभिषेक आशिक नहीं, अभिषेक क्या है पूरा नाम, आशिक ही लग रहा है। पम्मा। नहीं, इससे पहले यार स्कूल में, कॉलेज में तो कोई भी नहीं था, स्कूल में। और ऐसी आशिकी नहीं की थी मैंने जैसी मैंने उड़ारियाँ के सेट पे की थी। पता नहीं वो ऐसा क्यों था, पर वैसा कुछ मैंने नहीं किया था। और वो मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ अपने पम्मा के कैरेक्टर से, क्योंकि वो भी पूरा पागल है, वो वन साइडेड लव कर सकता है। और कर रहा है शो में। जब आप करिए बात, अब बोलने के लिए और बचा ही क्या है, गो फॉर इट। नहीं, मैं तो यार, मेरा तो सर कुछ भी नहीं छुपा हुआ, मेरा सब पता है। तो मैं ओपन रहता हूँ हर चीज़ों को लेके। और जैसा पम्मा है, जो पम्मा का कैरेक्टर है प्रॉपर अभिषेक जैसा ही है, कि वो वन साइडेड लव भी कर सकता है, अपने प्यार के लिए बहुत देर तक रुक भी सकता है, और अपने करियर पे भी फोकस कर रहा है। तो हर चीज़ अभिषेक की जो है रियल में, वो वैसा पम्मा है सेम। और इतना हमने तो एपिसोड्स देखे हैं जो कट्स हैं ना, शायद इसको अपने बारे में कोई होंगी, मतलब कि कई बार हर एक्टर को थोड़ी बहुत इनहिबिशन होती है कैमरे के सामने आने में, इसको शायद होगी। और बहुत कैंडिड भी रहता है, हमारे साथ में ही बोलता है। मगर मैंने जितनी बार एडिट देखा है, मैंने उतनी बार अभिषेक को फ़ोन किया है, और मैं इसको हमेशा ये बात कही है कि इतना तू प्यारा, इतना सच्चा। ये जो लाइन आपने ट्रेलर में सुनी कि मोहब्बत को दो लोगों की रजामंदी की ज़रूरत पड़ती है, मेरी आशिकी अकेले मुकम्मल है, ये लाइन इस लड़के पे इतनी फिट बैठती है ना कि वो बहुत खूबसूरती से, आप देखना पम्मा सीधा आपके दिल में उतर जाएगा। ये इट्स सच एन इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल कैरेक्टर ही इज प्लेइंग। देयर इज़ वन थिंग जो आई थिंक मैंने सबको नहीं बताई है, कि हमारे सारे शोज़ के प्रोमोज़ और लाइनें रवि दुबे खुद लिखते हैं। ये लाइन रवि दुबे की लिखी हुई है, और विवेक जी की मिसेस भी रवि दुबे का लिखा हुआ है वो पूरा प्रोमो। और दोनों प्रोमोज़, टीज़र्स, ट्रेलर्स सब रवि दुबे खुद डायरेक्ट करते हैं। हमारे पास एक ऑल इन वन मैन है, तो मुझे कहीं बाहर जाके, हमारे लिए इसलिए भी सस्टेनेबल बिजनेस है जी, हम सब कुछ अंदर में ही कर लेते हैं। और सर सब कुछ आपस में ही कर लेते हैं हम। गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। मैं एडिट पे बैठा था सर के साथ, और सर करे ना 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 ना, मैं क्या सर को म्यूजिक भी, और सर अपने में ही खोए हुए हैं, और म्यूजिक जो म्यूजिक बना रहा है उनको फोन करके ऐसा मेरे को था ना 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 ठा, ये चाहिए मेरे को। मैंने कहा क्या हो रहा है ये, मैं कहा सर हाँ बेटा वो जो तूने कविता बोली है ना, वो भी मैंने लिखी है, तो वो आराम से कर। तो हाँ, जो हमारे ट्रेलर के पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सब भी ये खुद ही बनाते हैं, खुद डालते हैं, एडिट, DI सब कुछ। तो दैट्स वाई। तो अगर आपके पास रवि दुबे है तो ये सस्टेनेबल है। इज व्हाट आई वांट टू से। अब आप दूसरा सवाल, सॉरी कोई पूछ रहा था। आप ऊंची बोल दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो चेक। अभिषेक, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने रियलिटी शो भी किया और एक्टिंग भी किया, आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है, किस में ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगता है, लाइक वैसा, और कोई बिहाइंड द सीन भी जानना चाहूँगी। तो जब तक मैंने ये तुझसे आशिकी, तू आशिकी है नहीं किया था, तब तक मेरे को एक्चुअल में रियलिटी में बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब बिग बॉस किया, खतरों के खिलाड़ी किया, लाफ्टर शेफ्स कर रहा हूँ, पर जब मैंने मतलब कुछ और जिया लाइफ में कि हाँ ये जीना क्या होता, तब मेरे को एक्चुअल पता चला कि यार एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा है। और मैं सर को, मैम को हमेशा बोलता था कि जब मतलब मैं ट्रैवल कर रहा था चंडीगढ़ बॉम्बे, लाफ्टर शेफ के लिए बॉम्बे, फिर चंडीगढ़, तो मैं बोलता था कि मुझे जल्दी बुला लो, लाफ्टर शेफ ख़त्म हो गया, मेरे को जाके एक्टिंग करनी है। तो एक्टिंग मतलब ऑब्वियसली रियलिटी शोज खत्म हो जाएंगे, एक्टिंग खत्म नहीं होगी, तो एट द एंड तो मेरे को एक्टर ही बनना है, तो एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। रवि सर, यहाँ आया।
यहाँ हाँ जी सॉरी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम सभी को पता है आप एक उम्दा एक्टर हैं, पर यहाँ एज अ डायरेक्टर हम आपको देख रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं कि एज अ डायरेक्टर किसी को एक्शन बोलना या किसी और डायरेक्टर से एक्शन सुनना? दोनों उसमें मतलब इट्स जस्ट काइंड ऑफ डूइंग दिस, बीइंग इन द स्टेट ऑफ फ्लो व्हेन यू आर डूइंग दिस, उससे बेहतरीन और कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। तो मैं और सरगुन, जैसा आपने सरगुन ने राइटली शी सेड, we love to do everything ourselves, whether it is the acting part, whether it is the production, all the writing of the show, the entire creative supervision, the entire logistical supervision, all Sargun. जहाँ मैं contribute कर सकता हूँ वहाँ में, but between us we keep wearing different hats and we enjoy it entirely, all of it. शिजान, आपसे एक क्वेश्चन है जी। रवि एंड सरगुन के साथ कोलैब करना, मतलब एक उनकी पूरी सीरीज में रहना, ये कितना टाइम लगा आपको सोचने में एंड कितना मज़ा आया उनके साथ काम करके? ज़्यादा नहीं लगा मुझे, इन्होंने बोला करोगे, मैंने कहा ओके करूँगा। इतना सोचता नहीं मैं, हाँ, लेकिन जब कहानी सुनी थी तो मैंने इनसे पूछा था कोने में ले जाके, मैंने कहा मुझसे काम कराओगे ना आप लोग? कह रहे तुझे क्या लगता है ऐसे ले रहे हम तुझे? अबे रगड़ देंगे। तो रगड़ देंगे। तो मैं गया सेट पे, ने भी मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था ये पूरी चीज़, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। और लिखा भी आपने ऐसा है, वो इसकी जब झलक आप देखोगे आप समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ना मुझे बुरा लगता था कि क्या है, ये क्यों है ऐसा क्यों है ये, बट देन जब आप देखोगे समझ में आएगा कि वो पम्मा ऐसा क्यों है, नूर ऐसी क्यों है, और ऑफ कोर्स अर्जुन वालिया ऐसा क्यों है। तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया। रवि एंड सरगुन जी, एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है इन दिनों, वर्किंग आवर्स की मतलब शिफ्ट को लेके बहुत सारे मतलब कई सारे एक्टर्स का नाम सामने आया जिनको, तो आप लोग का मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कितनी आवर्स की शिफ्ट में काम करना सही होता है? यार हमारा तो पता नहीं क्या ही बैलेंस है लाइफ में। हम तो वो वाले लोग हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, तो हमारा तो कोई वो नहीं, बट आई फील कि वर्किंग आवर्स सब अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इट्स समथिंग जो हमें कोई ब्लैंकेट रूल नहीं हो सकता। हर इंडस्ट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर सीन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर शो की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। सो क्रिएटिव इंडस्ट्री में जितने आवर्स हम लोग इतने सालों से देते हैं, इनफैक्ट जब हमने टेलीविज़न शुरू करा था तो कोई टाइम ही नहीं था, अब तो फिर भी 12 आवर्स का टाइम होता है। जब हमने शुरू करा था तो हम सुबह जाते थे और कब वापस आएंगे ये हमें पता नहीं होता था। सो उसके बाद ये टाइम आया ऑफ 12 आवर्स, एंड आई थिंक दैट वी वेरी वेल कोप विद इट, वेदर इट्स फिल्म्स, वेदर इट्स OTT, वेदर इट्स TV, हर जगह यही है। I can just add to that. हाँ जी, मैक्सिमम आई थिंक वीवर, एक टाइम टेलीकास्ट का इशू था तो मैं और सरगुन एक ही सेट पे, करोल बाग के सेट पे 36 घंटे थे, 36 आवर्स। बट वो एक अलग चीज़ है जो मैं इसका एक, मे बी दिस रिस्पॉन्स मेक्स सेंस टू पीपल, मे बी इट डज नॉट, मगर इसका एक जेनरिक आंसर हो नहीं सकता कि जी 12 घंटे की आप कर लीजिए, आप 8 घंटे की कर लीजिए, या 16 की कर लीजिए, या 20 घंटे की शिफ्ट आप कर लीजिए। इसका इतना ईजी आंसर नहीं है। हर दिन अलग है, हर प्रोजेक्ट अलग है, हर एक्टर की सिचुएशन अलग है, हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर मान लीजिए किसी एक्टर की तबीयत खराब है तो उसके लिए 1 घंटा काम करना भी बहुत ज़्यादा है। उसमें अगर आकर के वो सुबह सिर्फ क्लोज भी दे करके जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, 15-20 मिनट में काम खत्म हो जाएगा आपकी। बाकी आप चाहे ड्यूब के साथ कीजिए या किसी और तरीके के साथ कीजिए, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। वहीं एज अ प्रोड्यूसर अगर मैंने 5 लाख रुपए एक लोकेशन पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, मेरा एक्टर मेरे पास आकर के बोल दीजिए मैं तो 8 घंटे में जा रहा हूँ, सो यू नो, तो फिर वो मुझे वो अगले दिन पे ले जाना पड़ेगा। उसके वो 8 घंटे जो आधा घंटा वो फालतू दे सकता है, वो मेरे लिए 5, 5.5 लाख, 6 लाख रुपए का पड़ जाएगा। सो देयर हैज़ टू बी, देयर इज सो मच ग्रे एरिया ना। आई थिंक द इंडस्ट्री इज वर्किंग ऑन अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग that today there is a crisis, let's come together and solve that crisis. Tomorrow probably is going to be an easy day. Go back home, spend time with your family. You know? So इसका बहुत black and white में आंसर देना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा अभिषेक के साथ काम करके, और एक चीज़ जो मैंने सीखी है इससे कि बहुत डिसिप्लिन है ये अपनी लाइफ में। अगर इतने टाइम में इतना खाना खाना है और अभी वर्कआउट करना है, शॉट से पहले सारा सीन पढ़ना है,
वो मैंने अभिषेक से सीखा है एंड आई एम ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. वाह. न्यू जनरेशन के साथ क्या लगता है कितने साल के हैं मैं उसी जनरेशन का हूँ. मैंने ओल्ड मेकअप थोड़ा लिया है. आज प्रोस्थेटिक करके आए हैं. हाँ, प्रोस्थेटिक है वो. हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत मस्ती. मैं तो जिन लोगों के साथ काम करता हूँ उनकी एज पे आना पसंद करता हूँ. हाँ सच में, मतलब मैं कभी वो सीनियर वीनियर का चक्कर ही नहीं होता भाई अपने यहाँ. दोस्त तो पहले दोस्त, उसके बाद काम करते करते फिर वो दोस्ती बनी और दोस्ती एक्टिंग से आगे चली गई. हाँ मतलब आप सोचो कि 2010 से लेकर 2012 में मिलने वाला आदमी आज 2025 में साथ में खड़ा है. यहाँ तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड दोस्तियाँ होती हैं. एक प्रोजेक्ट खत्म, दोस्ती खत्म. 15 साल से आदमी हम साथ में हैं. और ऐसा नहीं कि आज इस प्रोजेक्ट की वजह से साथ में आए. बीच बीच में शायद हो सकता है नंबर ऑफ मीटिंग कम हो गई हो, बट वहीं से शुरू होता है जहाँ से छोड़ा था. बिल्कुल. थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सब लोग आए, थैंक यू सो मच. जाइएगा मत कहीं. अरे पर पूरा ट्रेलर भी उसी दिन शूट किया ना. ट्रेलर, टीजर, गाना. वो एंड में जाके जब ये कंप्लीट हो चुका था. हाँ सच में. यहाँ शिफ्ट टाइमिंग के ऊपर बातचीत हो रही है. मैं तो सेट पे खाना भी नहीं देता. सच में मेरे मम्मा पापा आए थे कि मैं क्या आ जाओ लंच करते हैं साथ में. वो बेचारे ऐसे ही गए हैं. अकेले खा के गए हैं वो. कैसा लगा मैम आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा. कितने सुंदर लग रहे हैं ना दोनों. Thank you, Abhishek. Thank you, Aman. Thank you for looking so good in the show. One quick announcement we'll make. We can get the flags here in the center. ले आइए, यहाँ लेते आइए. नहीं. Keep that there. The other one. Yeah. नहीं, हाँ, just that one. So this is a quick small announcement. अब तक जो आप ड्रीम यात्रा ड्रामा पे देख रहे थे वो ड्रीम यात्रा ड्रामा ओरिजिनल्स हैं, और अब हम एक और वर्टिकल शुरू कर रहे हैं जो सिंडिकेटेड कंटेंट होगा. एंड वी हैव अ लाइन अप फॉर दैट आल्सो, जिसका पहला शो हम अनाउंस कर रहे हैं. इट्स कॉल्ड चंपा लीला, स्टारिंग द ग्रेट संजय मिश्रा जी. एंड ये जल्द आएगा, ड्रीम यात्रा ड्रामा पे आएगा. और मेरे दोस्त हैं सूरज, मैं आई हैव टू टेक हिज नेम. इट्स थैंक्स टू हिम, ही इज रियली मेड दिस पॉसिबल. अ होल लाइनअप ऑफ सिंडिकेटेड कंटेंट. जी पोस्टर ऐसा बेटर. ओके हो गया. दैट्स इट. अल्ताफ भाई करेक्ट. गड़बड़ हुआ ये ठीक है. ओके सो दैट्स इट. ड्रीम यात्रा ड्रामा ओरिजिनल्स आप देख रहे हैं. ये ड्रीम यात्रा ड्रामा डिस्कवरी कहलाएगा. This is already made content. We are syndicating it and we are playing it on Dream Yatra Drama. नहीं, just now you can watch Dream Yatra Drama. Subscribe to it. और एक लास्ट चीज़, कुछ लोगों के बहुत सवाल आए थे कि हमने रफ़ू का लास्ट एपिसोड सिर्फ मेंबरशिप बेसिस क्यों किया. ये जान के हो सकता है आपको दुख हो या खुशी हो, बट हाले दिल और तू आशिकी है कि भी more than one episodes will just be only for the members. तो मेंबर्स को कुछ फ़ायदा होना चाहिए और ये कुछ फ़ायदे हैं जो उन्हें मिलेंगे. इनफैक्ट देर आर गोइंग टू बी एक्सटेंडेड कट्स, मतलब लंबे वर्जन्स ऑफ एपिसोड्स एंड एक्स्ट्रा सीन्स फॉर मेंबर्स ऑफ ऑल दी एपिसोड्स. सो अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप वैसे तो देखेंगे ही, बट इफ़ यू आर अ मेंबर यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स. सो या दुखी मत होइएगा, यू कैन जस्ट बी हैप्पी फॉर अस. Yeah, for the first many episodes are free for everyone, so you can just come and enjoy them. Thank you. See you on Dream Yatra Drama now.